بلٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ القسام بریگیڈ اسرائیل سے 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے یرغمال خواتین اور بچوں کی رہائی پر آمادہ۔ غزہ میں 5 دن جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کرنے پر تیار ہے۔ ترجمان القسام بریگیڈز قطری ثالثوں کو بتا دیا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کی صورت میں ہر انسانی امداد کی اجازت ہونی چاہیے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ اسرائیل سے 5 روز جنگ بندی کے بدلے یرغمال خواتین اور بچوں کی رہائی پر آمادہ ہو گیا۔ غزہ میں 5 دن جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کرنے پر تیار ہے۔ چین کی الشفا اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ مانگ کی پریس کانفرنس ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ چین کے الشفا اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی مذمت۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی بربریت سے ہلاک UN ورکرز کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی۔ 1 منٹ کی خاموشی پریڈ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر ارکان شریک۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے اب تک اقوام متحدہ کے 101 ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران پہلی مرتبہ اتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں اسرائیلی بربریت سے ہلاک UN ورکرز کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی۔ 1 منٹ کی خاموشی پریڈ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر ارکان شریک۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے اب تک اقوام متحدہ کے 101 ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ غزہ کا سب سے بڑا الشفا اسپتال عملی طور پر غیر فعال ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال کے دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیے۔ اطراف میں حماس سے لڑائی جاری۔ اسرائیلی سنائپر مریضوں کو بھی نشانہ بنانے لگے۔ بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے 6 نومولود اور 9 دیگر مریض دم توڑ گئے۔ بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 11,200 سے تجاوز کر گئی۔ 4,630 بچے، 3,130 خواتین شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والے طبی عملے کی تعداد 189، جن میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس شامل ہیں۔ عملی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً تمام اسپتال بند ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل بدلے کی آگ میں پاگل۔ غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کا گھیراؤ کر لیا۔ دروازوں کے سامنے ٹینک کھڑے کر دیے۔ الشفا اسپتال کے اطراف حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی سنائپر اسپتال میں موجود مریضوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ الشفا اسپتال پر کنٹرول سے شمالی غزہ کے 50% حصے پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ الشفا اسپتال کے بچوں کے ICU یونٹ کا انتظام سنبھالنے والے برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ بیمار بچوں کو کہیں اور منتقل کرنا بہت پیچیدہ عمل ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اس وقت الشفا اسپتال کے اندر 650 مریض، 500 عملے کے افراد اور 2,500 کے قریب بے گھر افراد موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق الشفا اسپتال مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا، جبکہ غزہ کے تقریباً تمام ہی اسپتال عملی طور پر بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں نہ ادویات ہیں اور نہ ہی بجلی۔ عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ بشا بی بی سے نیب راولپنڈی آفس میں تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کا مکمل کی ہے۔ نیب نے بشا بی بی سے 11 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ فراہم کر کے جوابات میں مانگ لیے۔ بشا بی بی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن کے کیس میں نیب راولپنڈی کی بشرا بی بی سے تفتیش مکمل۔ قومی احتساب بیورو نے بشرا بی بی کو 11 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی تھما دیا۔ سابق خاتون اول کا نام ECL میں بھی ڈال دیا گیا۔ نیب کے سوال نامے میں بشرا بی بی سے پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور کیا اسلامی تدریس کا کورس بھی کر رکھا ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا مراعات بھی لیتی رہی ہیں۔ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا۔
नेब ने बुशरा बीबी से पूछा है कि फरहत शहजादी के साथ आपका क्या ताल्लुक है, फरहत शहजादी को आप कैसे जानती है और क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। दूसरी तरफ 190 मिलियन करप्शन केस में बुशरा बीबी का नाम ECL में भी शामिल कर लिया गया है। नैब ने वजारत दाखिला से बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की, जिस पर वजारत दाखिला की ज़ेली कमेटी ने बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल कर लिया। चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की टीम ने अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी डालने के बाद चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश भी कर लिया। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार। नैब टीम ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश भी की। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में समाअत के दौरान नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वहाँ दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। अदालत ने न अदालती हुक्म मुअत्तल किया और न ही कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है। इस्तदा है कि वारंट जारी किए जाएं और जेल सुपरिटेंडेंट को इक़दामात की हिदायत की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जब वारंट के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे तो जिस्मानी रिमांड के लिए इसी अदालत में लाएंगे। अगर अदालत सुपरिटेंडेंट जेल को वारंट तामील कराने की हिदायत जारी कर दे तो बेहतर है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने क्या किया है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्होंने इजाजत दे दी है कि वारंट तामील करवा सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि गिरफ्तारी क्यों डाल रहे हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए गिरफ्तारी की जरूरत है। नैब रावलपिंडी की टीम तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर वकार हसन की क़यादत में शाम 5 बजे अडयाला जेल पहुंची। नैब ने चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में गिरफ्तारी के साथ शामिल तफ्तीश कर लिया। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से 1 घंटा 5 मिनट तक तफ्तीश की गई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने DG माहौलियात को फौरी तब्दील और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर अजला के अफसरान को फौरी ट्रांसफ़र करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्कूल्स कॉलेजेस हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने और 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या सिर्फ ये हल है कि पंजाब भर में छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी हारून फारूक समेत दीगर की स्मोक तदारक के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया कि हाफजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, खानेवाल, बहावन नगर समेत दीगर इजला में फजा आलूदा तरीन है। अदालत ने सख्त इजहार नाराजगी किया और कहा कि सोशल मीडिया पर भी फसलों की बाकियात को आग लगाने की वीडियोस आ रही हैं। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर भी बरहमी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि कमिश्नर लाहौर इधर आकर बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी सोए हुए हैं। क्या सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियों का ऐलान कर दें? अगर 5 मिनट ट्रैफिक बंद हो तो पूरे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। अदालत ने DG माहौलियात को फौरी तब्दील और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर इजला के अफसरान को फौरी ट्रांसफर करने का हुक्म दिया। अदालत का हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। अदालत ने स्कूल कॉलेजेस को भी 2 रोज हफ्ता और इतवार बंद करने का हुक्म दिया। LDA के वकील ने मौकफ अपनाया कि हमने 70 रोज में सिर्फ अंडरपास तामीर कराया है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको इस पर सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। अदालत का कहना था कि इस तामीर के बाद जो स्मोक आएगी पूरी सर्दियां हम भुगतेंगे। पंजाब हुकूमत साइकिलिंग को फरोग दे और अफसरान के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदे। अदालत ने मेंबर वाटर कमीशन को चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मुलाकात करके अदालती अहकाम के बारे में आगाह करने की हिदायत करते हुए समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और नून लीग में शमूलियत प्रोग्राम की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट ने पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोयटा पहुंचने के बाद मुकामी होटल जाएंगे, जहाँ वह सूबे के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बेस से साबिक अरकान पार्लियामेंट बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ के दौरे के दौरान साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी अपने ग्रुप के हमरा कायद नून लीग से मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ 15 नवंबर को पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वापस लाहौर रवाना होंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक रुकन असम्बली सलीम खोसा और मीर फाइक जमाली ने पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में जाने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की कोयटा आमद पर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दौरा जिंदा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग, कंपनी के 2 मुलाजमीन समेत सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द कुदरत शाह उर्फ अबू बकर मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दौरा जिंदा में दहशतगर्दों ने इलाके में तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाली निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग से कंपनी के 2 सिविलियन मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान शहीद हो गए। प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही सैयद मोहम्मद शाहीन शाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इलाके की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। सारिफीन के लिए खुशखबरी, आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर और पेट्रोल के निर्खों में 2 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता होने का इम्कान। राय के मुताबिक 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। भट्टी के तेल की कीमत 4.5 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 16 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। वर्किंग के मुताबिक गुज़िश्ता 10 रोज में पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा $92 फी बैरल बरामद किया गया, जबकि आलमी मार्केट में डीजल की कीमत $111.68 फी बैरल तक रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में औसतन $5, जबकि डीजल की कीमतों में $13 फी बैरल कमी हुई। ओगरा कीमतों के मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वजीर खजाना वजीर आजम से मशावरत के बाद कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। मुल्तान का जनरल बस स्टैंड सहूलियात के फुकदान के बायस मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ज़िला इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से बसों वैगनों से सफ़र करने वाले शहरी किन मुश्किलात का शिकार होते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। शहर का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड जहां से रोजाना हजारों मुसाफिरों का गुजर होता है, ताहम सहूलियात की कमी के बायस अब ये स्टैंड खस्ता हाली का शिकार है। हर तरफ कूड़ा करकट का ढेर, बैठने की जगह और ना ही बस स्टैंड पर साफ पानी का कोई बंदोबस्त है, जिसकी वजह से बस से सफर करने वाले बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन सभी सफर शुरू होने से पहले ही परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है, यहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं, कोई कमरा वगैरह, यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ, ना इधर बैठने की जगह, ना यहाँ पे स्टे रूम है, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। बस स्टैंड की हालत जार पर जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि 40 करोड़ रुपए के फंड्स मौजूद हैं, जिनसे बस स्टैंड पर CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन समेत मुसाफिरों को तमाम तर सहूलियात जल्द मुहैया कर देंगे। जनरल बस स्टैंड पे जी जो मैंने उस दिन विजिट किया है, 40 करोड़ का उनके पास मालियाती फंड है, जिसको मैंने कहा जी आप इस खजाने को निकालें, अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स बनाएं। सहूलियात के फुकदान के हवाले से जो लाइट्स ख़राब थी वो ठीक करवाएं, वाशरूम्स की हालत बहुत ख़राब थी वो ठीक करवाएं। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद स्टैंड पर सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं। CCTV कैमरे और सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी की वजह से मुसाफिरों का सामान चोरी होना अब मामूल की बात है, जबकि प्राइवेट कैंटीन्स और होटलों पर गैर मेयारी खाने पीने की अशिया की फरोख्त भी जारी है। खस्ता हाली का शिकार इस जनरल बस स्टैंड पर ना तो पीने के पानी का कोई इंतजाम है और ना ही मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह मुख्तस की गई है, जिसकी वजह से शहरी अब सख्त अजियत में मुब्तला हैं। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।